Namaskar, welcome to your own YouTube channel SGKG Studies Guruji. And on this channel, now we are discussing about leave rules for central government employees. So far we have discussed salient features, principles of leave, types of leave, casual leave we have discussed. Now we will discuss earned leave. earned leave को हिंदी में अर्जित अवकाश कहते हैं. अर्न मतलब अर्ज करना होता है. अर्निंग इज ए इनकम. सो दैट मीन्स अर्निंग is a process in which we are doing something, and after doing something we are getting something. We are performing some duties and in return we are getting something, that is called arjit, that is called earned. So in our service career we are earning our salary, we are performing certain types of duties prescribed to us, and by dint of that services we are earning salary. In addition to salary, we are earning certain quantum of leave also, and that leave is known as earned leave. अपने कार्यकाल के दौरान हम लोग अपना मासिक वेतन हम अर्जित करते हैं, और मासिक वेतन अर्जन के साथ साथ कुछ दिन के अवकाश भी हम अर्जित करते हैं, और उन्हीं को हम अर्जित अवकाश कहते हैं. सो लेट अस लर्न better, let us discuss in a length rules relating to earned leave applicable to central government employees. So once again we will just have a glance the types of kinds of leave, that is casual leave, special casual leave, earned leave, half pay leave, commuted leave, maternity leave, paternity leave, child care leave, child adoption leave, WRIL. This WRIL is work related illness and injury leave. It is specific to some job. This leave is related to some job, and that is why its name is work related illness and injury leave. Extraordinary leave, study leave, leave not due, special leave connected to inquiry of sexual harassment. So now we are going to learn earned leave, अर्जित अवकाश. So first rule is credit of EL will be afforded in advance at uniform rate of 15 days. So normally earned leave means first you perform the duty and then you earn. But government has given little bit relaxation, and government says okay, that can be credited well in advance, that earned leave can be credited in advance in anticipation of future duties, and because of that 15-15 दिन का 6-6 महीने पर एडवांस में अर्जित अवकाश क्रेडिट कर दिया जाता है. सो सेकेंड रूल इज क्रेडिट विल बी ऑफर्ड ऑन 1st January and 1st July. So on 1st January of the calendar year 15 days credit will be EL will be credited. On 1st July 15 days EL will be credited, so that it can be availed. It can be availed with or without medical certificate. So for availing earned leave medical certificate is not necessary. मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना ही अर्जित अवकाश अवेल किया जाता है. Proportionate credit in case of appointment in the middle of the half year at 2.5 days for each calendar month. So generally EL is credited on 1st January and 1st July. साधारणतया EL जो है 1st जनवरी
को 15 दिन और 1 जुलाई को 15 दिन हमारे रिकॉर्ड में क्रेडिट किया जाता है। लेकिन अगर किसी का ज्वाइनिंग इन बिटवीन होता है, इन बिटवीन द ईयर होता है, इन बिटवीन द मंथ होता है, तो फिर वैसे केस में क्या होगा, 2.5 डेज पर मंथ के प्रोपोर्शन के हिसाब से उनको लीव क्रेडिट किया जाएगा। सपोज अगर कोई फरवरी में 1 फरवरी को ज्वाइन करता है तो 2.5 डेज माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 27.5 डेज हो जाएगा। कोई मार्च में कोई ज्वाइन करता है 1 मार्च को या 28 फरवरी को, तो ऐसे में उसके 2 महीने के 2.5 डेज निकल जाएंगे, 25 डेज क्रेडिट होगा। सो पर मंथ फ्रैक्शनल जो क्रेडिट होना है वो 2.5 पर मंथ के हिसाब से होना है। अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम विल बी क्रेडिटेड टू EL अकाउंट। सो क्या होता है, ट्रांसफ़र में जब भी ट्रांसफ़र होता है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो उस समय ज्वाइनिंग टाइम हमारा मिलता है। ज्वाइनिंग टाइम जर्नी डेज के लिए भी होता है और ज्वाइनिंग टाइम प्रिपरेटरी भी होता है। तो उस ज्वाइनिंग टाइम को अवेल करके हमें ड्यूटी ज्वाइन करना होता है। अगर किसी कारण से वो ज्वाइनिंग टाइम अवेल नहीं किया गया तो वो ज्वाइनिंग टाइम EL में कन्वर्ट हो जाता है, EL में कन्वर्ट किया जाता है। This is the power of the sanctioning authority. Leave sanctioning authority has the power to convert joining time, that is maximum 15 days, as a EL. Encashment can be allowed for 300 days at the time of retirement. क्या होता है इनकैशमेंट, मतलब लीव के बदले पैसे लेना, लीव के बदले कैश लेना। या तो हम लीव ले लेंगे और नहीं तो लीव के बदले ड्यूटी करेंगे और उसके बदले में एक्स्ट्रा कैश हम लेंगे। सो ये सर्विस में ये प्रोविज़न है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हर साल 30 दिन क्रेडिट हो रहा है। तो 12 साल में 36 साल 360 हो जाएगा, 10 साल में 300 दिन हो जाएगा। लेंथ ऑफ सर्विस जो है 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, डिपेंड्स अपॉन द एंट्री टाइम, उसके अनुसार लेंथ ऑफ सर्विस होता है। सो क्या है, गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देती है कि 300 डेज तक अगर अनअवेल्ड EL है थ्रू आउट द सर्विस कैरियर, इफ 300 डेज अनअवेल्ड EL इज देयर, सो दैट कैन बी इनकैश्ड। मतलब रिटायर होते समय 300 दिन EL अगर आपने अवेल नहीं किया है, एक्यूमुलेट होकर के रह गया है, अनअवेल्ड रह गया है, तो उसके बदले में 300 डेज का मतलब 10 महीने का सैलरी आपको अलग से दिया जाता है। उसको बोलते हैं इनकैशमेंट ऑफ लीव। 10 डेज ऑफ EL कैन बी इनकैश्ड फॉर LTC मैक्सिमम 6 टाइम्स। तो ये प्रोबेबली 7th पे कमीशन में आया था, 7th पे कमीशन में ही आया था ये। तो इसमें क्या है, 10 डेज EL जो है, जैसे 30 डेज आपका पर ईयर EL हो रहा है, तो उसमें से 10 डेज EL आप अवेल करके बाकी अवेल करके 10 डेज अगर आप इनकैश करना चाहते हैं, मतलब 10 डेज का अनअवेल्ड पोर्शन ऑफ EL का आप पैसे लेना चाहते हैं, तो आपके पास इनकैशमेंट की ये सुविधा है। दैट इज़ मैक्सिमम 6 टाइम मीन 60 डेज का है ये मैक्सिमम पीरियड। दिस इज द, ये जो 10 दिन का EL है इनकैशमेंट, दिस इज ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड। जो वो 300 डेज का इनकैशमेंट है वो ऑन रिटायरमेंट है। 300 डेज का इनकैशमेंट जो है रिटायर होने के बाद से उसके पैसे मिलते हैं। जो ये 10 डेज करके 60 डेज का ये बता रहे हैं, ये ड्यूरिंग द सर्विस है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ EL कैन बी अवेल्ड इज 180 डेज। अगर किसी का EL 500, 600, 700 दिन एक्यूमुलेट हो गया है, क्या हुआ, EL जो भी अनअवेल्ड होता है वो लैप्स नहीं होता है। अनअवेल्ड EL जो होता है वो जुड़ता जाता है, इस साल का 30 दिन, अगले साल का 30 दिन, अगले साल का 30 दिन, 90 दिन हो गया, तो ये जुड़ते जाता है। EL डजन गेट लैप्स। So since it doesn't get lapse, so it keeps on accumulating and it may go to 300, 400, 500, 600, depends upon the length of service and unavailed period of the EL. So if such situation arises,
then government employee can avail 180 days EL at a time. लगभग 6 महीने की छुट्टी एट ए टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉई ले सकते हैं, EL ले सकते हैं अगर उनके अकाउंट में है तो. इफ एम्प्लॉई इज ऑन लीव प्रिपरेटरी कैन अवेल मोर देन 180 डेज एट टाइम. लीव प्रिपरेटरी जो होता है उस पीरियड में 180 डेज से ज़्यादा भी ले सकते हैं. आउटसाइड इंडिया, दैट इज बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान. मतलब आउटसाइड इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान, इन 7 कंट्री को छोड़ करके अगर किसी और कंट्री में ड्यूटी है, इन दैट केसेस EL कैन बी एक्सटेंडेड इन 300 days also. If a government servant has availed of extraordinary leave and or some period of absence has been treated as dies none in a half year, मतलब अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव चले गए हैं इसका मतलब कि कोई भी लीव उनके पास बाकी नहीं था, कोई भी अनअवेल्ड पोर्शन बाकी नहीं होता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेना पड़ सकता है. और चाहे कुछ दिन अब्सेंट हो गए हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डाइज नन. डाइज नन का मतलब ये होता है कि सर्विस, वो पेंशनरी सर्विस के लिए वो एलिजिबिलिटी नहीं है उतने दिन का. उतने दिन का आपका लेंथ ऑफ सर्विस कट जाएगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ पेंशन. तो उसके हिसाब से क्या करना है, ऐसे केस में जब EL क्रेडिट करते हैं तो उसमें कुछ प्रोपोर्शनेटली रिडक्शन हो जाता है. दैट इज रिड्यूस्ड बाय 1/10 ऑफ द पीरियड ऑफ सच लीव और अब्सेंस. वो प्रोपोर्शनेटली वो रिड्यूस हो जाता है. इसलिए अब्सेंट नहीं रहना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव नहीं लेना चाहिए. अब ये जो रूल है ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 तरह के एम्प्लॉय होते हैं. कुछ वैकेशनल डिपार्टमेंट होता है, कुछ वैकेशन डिपार्टमेंट होता है, कुछ नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट होता है. जैसे स्कूल है, स्कूल में वैकेशन होता है, उनका क्या वैकेशन होता है, समर वैकेशन होगा, विंटर वैकेशन होगा. उस पीरियड में स्कूल बंद रहेगा. तो स्कूल बंद रहेगा तो स्टूडेंट भी नहीं आएंगे, टीचर भी नहीं आएंगे, तो उनको बोलते हैं वैकेशन डिपार्टमेंट. सो वैकेशन डिपार्टमेंट का EL का रूल अलग होता है. ऐसा नहीं है कि समर वैकेशन भी ले लिए, विंटर वैकेशन भी ले लिए और 30 डेज EL भी ले लिए, फिर कितना दिन काम करेंगे. इसलिए जितने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वैकेशन डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं उनके लिए EL का रूल अलग है. क्या रूल है, A government servant other than a military officer serving in vacation department shall not be entitled to any earned leave in respect of duty performed in any year in which he avails the full vacation. पहला कंडीशन ये है कि समर वैकेशन हो गया, विंटर वैकेशन हो गया, कुछ फेस्टिवल वैकेशन हो गया, अगर इस वैकेशन में दैट टीचर, दैट वैकेशन डिपार्टमेंट स्टाफ, वेदर इट इज़ टीचिंग और नॉन टीचिंग, वैकेशन डिपार्टमेंट स्टाफ enjoys that vacation, then he is not entitled for further earned leave. His earned leave is neutralized. His earned leave due is neutralized by vacation. In respect of any year in which government servant avails a portion of vacation, he shall be entitled to earn leave in such proportion of 30 days as the number of days of vacation not taken bears to the full vacation. क्या होता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि समर वैकेशन हो जाए, विंटर वैकेशन हो जाए और स्कूल में बच्चों के रिजल्ट तैयार करने हो, आंसर शीट रिवैल्यूएशन करना हो, कुछ और भी स्कूल के ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों जिसमें उस वैकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको वैकेशन अवेल नहीं करने दिया जाता है, उनको बुला लिया जाता है, ड्यूटी पे रहना है आपको. सो इफ वैकेशन डिपार्टमेंट पर्सन इज नॉट गोइंग ऑन लीव ड्यूरिंग द वैकेशन, देन टू दैट एक्सटेंट, अगर 30 दिन का वैकेशन है उसमें से वो 15 दिन वो अवेल करते हैं और 15 दिन में उनको ऑफिस में बुला लिया जाता है.
20 दिन अवेल करते हैं और 10 दिन उनको ऑफिस में बुला लिया जाता है. सो फॉर रिमेनिंग पीरियड ऑफ वेकेशन ही इज इंटाइटल्ड फॉर earned leave. So that means either you take vacation leave or you take earned leave. The portion of unavailed vacation leave can be taken as earned leave as and when required, provided that no such leave shall be admissible to government servant not in permanent employee or quasi permanent employee in respect of first year of his service. सो वैकेशन डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस में जो परमानेंट नहीं है और कॉजी परमानेंट नहीं है उनको किसी भी प्रकार का लीव नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट वैकेशन लीव. इफ इन एनी ईयर द गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट अवेल एनी वैकेशन, अर्नड लीव शैल बी एडमिसिबल टू हुम इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ईयर अंडर रूल 26. सो जिस ईयर में वैकेशन स्टाफ वैकेशन पीरियड में लीव वैकेशन इंजॉय नहीं करता है, अब्सेंट नहीं रहता है, उनको बुला लिया जाता है. सो सिंस इज वर्किंग ड्यूरिंग द वैकेशन पीरियड, दैट इज वाई फॉर दैट पीरियड ही इज एलिजिबल फॉर द अर्नड लीव. हाउ मच? एज पर रूल 26. और रूल 26 क्या है? रूल 26 ये है. रूल 26 के हिसाब से ऑन 1st जनवरी एंड 1st जुलाई 15 days EL is credited. So this rule is applicable to vacation department staff also if they are not availing vacation leave. If they are availing vacation leave, they are not entitled for any kind of earned leave. This is the special peculiar feature, we must know it. So this is all about earned leave. So far in this leave chapter we have learnt salient features, principle and types of leave, casual leave and its rule, earned leave and its rule. We will meet in the next classes. Till then, if you have not subscribed, please do subscribe SGKG Studies Guruji YouTube channel. For RTI Act classes, please do subscribe and visit SGKG 2.22, that is previous channel, and keep on sharing to your friends so that it can reach to all the needy persons. So please do subscribe here, subscription button is there, so please do subscribe. Please do like and please do comment whatever you want to put in the comment box. We will meet in the next class. Till then, namaskar.